Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you Geography chapter number 9, Agriculture. Okay. So before starting the explanation, let's observe figure 9.1, a house in a village. What all do you see in this picture? Yes. So what thing that we see in this picture? Some trees are there. There is one farm. Two houses are there. Some domestic animals are also there. Why has the family kept goats and hens? Yes, so why this family has kept goat or hens with them? Yes, obviously they goat give them milk, right? And hens give them egg. That's why they keep this animal as a pet animal. Which implements are seen in the picture? Yes. Now which implements that we can see in this picture? Yes. Implement that used for agriculture, right? This one or this, right? In which major occupation type will the activities shown here be included? Yes. So in which major occupation type will the activities shown here to be included? Yes. अब यहाँ पे जो आप लोग को चीज़ें दिख रही है, राइट? सो उससे आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा ऑक्यूपेशन होगा यहाँ पे? मेजर ऑक्यूपेशन क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, राइट? ये सारी जो चीज़ें हैं, जो फार्म है नियर द हाउस देयर इज अ फार्म, राइट? So because of that thing, we can easily say that here the major occupation is agriculture. What could be the main occupation of these people? Obviously, agriculture. Now let's come toward the geographical explanation. Okay. In the picture shown above, we see a standing crop, a pluck shear, etc. Yes. So in this picture, we can see स्टैंडिंग क्रॉप्स. देखो यहाँ पे आप लोग को क्रॉप्स दिख रही है, स्टैंडिंग क्रॉप्स और अ प्लग शेयर. ओके, देखो ये फ्रॉम दिस इट बिकेम ऑब्वियसली दैट दिस इज़ अ फार्मर हाउस. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग क्या गेस कर सकते हैं? इनफैक्ट गैस नहीं, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो हाउस है वो किसका है? फार्मर का हाउस है. अ फार्मर कीप्स हेंस, शीप, गोट्स एंड कैटल्स. यस, farmer keeps them, means keeps with them some domestic animals like hen, goats, sheep or cattle. Okay, they are also seen in the picture. Yes, so these animals we can also see in this picture, right? Cattle, hens, goats, one dog is also there. There are, yes, so they are also seen in the picture. He gets milk, egg, etc. from them. Obviously, because of these animals, the farmer getting milk or egg or etc. other things. He sells hens, goats to earn money. Yes. So whenever he want to sell this domestic animal, so after selling the domestic animal, he got money. He will get money, है ना? He earn money from selling this animal. He does all this for his substances. All these occupation depend on natural factor. Yes. अभी ये सारे वर्क कर रहा है फार्मर, राइट? अब ये सारे जो जो भी वर्क होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? नेचुरल फैक्टर के ऊपर. ऑब्वियसली ये फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, तो फार्मिंग में उन लोगों को सबसे ज़्यादा क्या लगता है? वाटर, राइट? तो वाटर के लिए उन लोग टोटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं. इसके लिए देखो रेनी सीज़न के टाइम पे बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट की जाती है, ताकि वो जो क्रॉप्स है उनको अच्छे से वाटर मिल सके. ऑल दीज फॉल अंडर एग्रीकल्चर. अब ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? एग्रीकल्चर में आ रही है. दिस ऑक्यूपेशन आर सप्लीमेंट्री टू द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. अब ये जो ऑक्यूपेशन है
वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। किस चीज़ के लिए? फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप फॉर आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड होप। एग्रीकल्चर की क्या है, बहुत ज़्यादा ही स्कोप है ना एग्रीकल्चर की। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे जो बेसिक नीड्स है जैसे फूड और क्लोथिंग, ये फुलफिल होती है। एंड वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। और हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं। Besides the cultivation of different crops, rearing cattle, sheep and goats, maintaining poultry farm, keeping bees, sericulture, horticulture, orchardry, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in agriculture. Yes. अब देखो, अभी कल्टीवेशन के अलावा अगर हम लोग बात करें ना, बिसाइड मीन अब जैसे कल्टीवेशन की बात करें हम लोग, तो उसमें क्या क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होते हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद क्या होता है, रियरिंग कैटल, जो कैटल्स होते हैं उनको रियर किया जाता है, फिर शिप और गोट्स को। फिर क्या करते हैं उन लोग को से पोल्ट्री फार्म, जैसे जो हैन और चिकन होते हैं उन लोग के लिए पोल्ट्री फार्म मेंटेन किया जाता है। फिर कीपिंग बीज और सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्चर्ड्री, फिशिकल्चर, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती है। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? एग्रीकल्चर में आ रही है। ओके, और एग्रीकल्चर में मेन क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, लेकिन फार्मिंग के अलावा ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, एनिमल, इम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। यस, अब अगर हम लोग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में देखें ना, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में देखें तो जो रिसोर्सेज होते हैं मेन, वो क्या होते हैं? मैन पावर होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। फिर इम्प्लीमेंट्स और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती है? यूज़ होती है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ एम्प्लॉयड। अब क्या हो रहा है? एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लोग, है ना। अब ये तो फार्मर्स के पास पहले ट्रैक्टर नहीं होता था, तो ट्रैक्टर के पहले लोग क्या करते थे, वो जो वुड होता था उससे बनाते थे ना हल, और फिर वो फार्मिंग करते थे। तो वैसे ही अब कैसे, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे फार्मर्स एग्रीकल्चर में। इन एग्रीकल्चर, cultivation of crops is considered to be the main and the most important occupation. Yes, अब ऑब्वियसली इन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो क्या कंसिडर करा है, मतलब वो क्या है? ए मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ओके, आप बताओ। Yes, now give it a try. Okay. Now there is now figure 9.2 ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखो, ये पिक्चर के थ्रू हम लोगों को क्या दिखाया हुआ है? दे शोज सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस सम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे हैंड्स दिख रहे हैं, राइट। अब ये जो टू हैंड्स हम लोगों को कैसे दिख रही है? जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से दिख रहे हैं। अब ये जो है, ये कैसे दिख रहे हैं? मॉडर्न एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। ओके, नाउ दिस पिक्चर शोज अस ट्रेडिशनल एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। इसमें क्या, ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, जैसे ये फार्मर्स वर्क कर रहे थ्रू दिस हैंड और यूजिंग सम इम्प्लीमेंट्स, है ना। तो ये है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, एंड बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर, और दिस पिक्चर शोज अस द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर। Now geographical explanation. In the above picture, we see the changes in the agricultural practices. So obviously, through this picture, we see that कि जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, राइट, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर किया जाता था, राइट। सो एज़ कम्पेयर टू नाउ, अभी के टाइम से अगर हम लोग प्रीवियस टाइम को कंपेयर करें, तो वो टाइम पे कैसे ट्रेडिशनल वे यूज़ करते थे, और अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना। In the past, primitive man had to wander in the forest
to sustain himself on the collected forest produce. Yes, अब देखो इन द पास्ट टाइम, जब पास्ट टाइम था मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जो पीपल्स थे राइट, वो क्या करते थे ऑब्वियसली उनके फूड के लिए उन लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाते थे, वहाँ से कलेक्ट करते थे जो उन लोगों की चीज़ें मिलती थी खाने के लिए, वो चीज़ें उसको कलेक्ट करते थे. लेटर ही लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड स्टार्टेड गेटिंग ग्रेटर प्रोडक्शन और फ्रॉम द लैंड. फिर बाद में उन लोगों ने क्या सीखे, क्या लर्न किए, आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, मतलब कैसे कल्टिवेशन करना है, मतलब कैसे क्रॉप को कल्टिवेट करना है, ये उन्होंने सीखे. और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटर प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब जैसे जो लैंड है उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. थ्रू दिस ही कुड प्रोवाइड मोर द होल ईयर नीड फॉर फूड ग्रेन्स. अब इसी की वजह से वो क्या करते थे, मतलब उनकी जो होल ईयर्स की जो नीड्स होती थी फूड ग्रेन्स को लेके, तो वो उससे फुलफ़िल कर लेते. ऑब्वियसली देखो जो फार्मर्स होते हैं आप लोग ने देखे होंगे, तो उन लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे सपोज़ फार्मर उनके फार्म में क्या कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मतलब होल ईयर का जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं, है ना. फिर जो होता है मतलब एक पहले तो अपनी जो भी उन लोगों को मतलब जितना भी मिलता है क्रॉप, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसका कुछ पार्ट जो है वो अपने फैमिली और घर के लिए रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो उसको सेल करते हैं. सो वैसी he also started obtaining a number of products through floriculture, horticulture, rearing animals, pisciculture, etc. Abandoning nomadic life, he undertook different occupations related to agriculture at the same place. Yes. अब देखो अभी अगर हम लोग नोमेटिक लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो टाइम पे ऑक्यूपेशन से जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिलेट करते थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने सीखा था, है ना. अब जैसे एग्रीकल्चर तो कर ही रहे थे राइट, लेकिन उससे मिलते जुलते थे बहुत सारे वर्क होते थे, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन होते थे जो उन्होंने अंडरस्टैंड किए थे, समझे थे. Now let us get introduced to the different occupation that came under the scope of agriculture. Yes, अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो different occupations आए हैं through agriculture. Okay, we use product of this occupation in our daily life. Obviously वो जो product होते हैं वो हम हमारी daily life में use करते हैं. These traditional occupation are allied activities in agriculture. अब ये जो traditional occupation ये क्या है, अलाइड एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर की. ओके, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा है ऑक्यूपेशन, अदर ऑक्यूपेशन, वो है एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग डिफरेंट एनिमल एंड ऑब्टेनिंग वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम देम फॉर सब्सटेंसेंस इन द कोर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग. यस, अब देखो जो एनिमल हस्बेंड्री उसमें क्या करते हैं, वो रियर करते हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उन लोगों को रियर करते हैं, फिर उन लोगों से वेरियस जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं. जैसे भी शीप हो गई, है ना. नाउ डेयरी फार्मिंग, अब देखो काउ, ऑक्सन, बफेलोज एक्सेट्रा आर रियर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क. अब ये जो वर्क हो, जैसे ये काउ, ऑक्सन, बफेलोज और एक्सेट्रा, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, है ना. एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो भी वर्क होता है तो उसमें ये सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं. Rearing milch animals and animals which can be employed in farming is also an occupation. अब देखो ऐसा वर्क जो एनिमल्स का यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एक ऑक्यूपेशन है. ओके, जैसे अभी ये एनिमल हस्बेंड्री बताई मैंने, है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मिक्स फार्मिंग. अब ये क्या क्या कंसिडर कर रहा है, एक इनसेपरेबल पार्ट है मिक्स एक फार्मिंग का, क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का, है ना. इट हैज़ बिकम क्वाइट कमर्शियल इन रिसेंट टाइम. इन इंडिया इट हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग रिसेंटली. यस, अभी अगर देखो ये जो है मतलब जो चीज़ें हो रही है, तो ये मिक्स फार्मिंग का बताई मैंने, है ना. तो ये क्या है, बहुत क्वाइट है. ओके, क्वाइट कमर्शियल है अभी के टाइम में, और हमारी कंट्री ने इसको क्या किया है, मतलब इसको रिसेंटली स्टार्ट किया. मतलब इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ऑब्वियसली हर एक चीज़ में, कैसे जैसे जैसे डेवलप हो रहा है कंट्री का, तो वैसे हर एक फील्ड में क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है. तो वैसे ही इसमें भी क्या आई है, चेंजेस आते गई है.
कमर्शियल डेयरी फार्मिंग इज़ मेनली अंडरटेकन फॉर मीट एंड मिल्क। अब ये जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है तो ये मेनली कहाँ पे अंडरटेकन होती है, जो मीट होते हैं और जो गुड मिल्क होते हैं उस वो मिलते हैं, मतलब हम लोग को कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के थ्रू। शीप एंड गोट रियरिंग। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। यस, अब ये जो है शिप और गोट रेयरिंग ये भी क्या है, हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। दैट इज़ जनरली कैरिड आउट इन हिली ट्रैक्ट एंड सेमी एरिड रीजन विथ ड्राई क्लाइमेट। अब ये जो है मतलब शिप और गोट रेयरिंग ऑक्यूपेशन का है ना, तो ये कहाँ पर होता है जनरली, ये कहाँ पर होता है, जो हिली ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर होता है। ओके, और ऐसे रीजन में होता है जहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, ड्राई हो। Sheep and goats survive on short grasses, scrubs and acacia. Yes, obviously अब ये sheep और जो goats ये कहाँ पे survive करते हैं, जहाँ पे short grasses होती है ना। अब ये जो short grasses होती है, फिर acacia ऐसे जो plants होते हैं, तो ये कहाँ पे growth होते हैं, जो remote hilly rural areas होती है वहाँ पर होते हैं। और obviously ये कहाँ से दूर होते हैं, जो urban settlement होता है उनसे दूर होते हैं। In India, it is mainly undertaken for meat. Sheep rearing is carried out to obtain wool. Yes, अब ये जो sheep rearing है तो वो किस obviously ये carried out होता है, तो हम लोगों को sheep से क्या मिलता है, जैसे देखो हम लोगों को goat से milk मिल रहा है, फिर जो अदर एनिमल्स होते हैं उन लोग से हमको मीट मिल रहा है, फिर उन लोगों की जो स्किन होती है उसका भी यूज़ करते हैं, उससे लेदर जैकेट विकेट बनाई जाते हैं, राइट। सो वैसे ही शीप जो है शीप के थ्रू हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, वूल ऑब्टेन करते हैं। नाउ पोल्ट्री। Keeping hens and other fowl is a common practice in all parts of the world. Yes, अब keeping hens और जो others जो fowls होते हैं उनको रखना अपने पास में एज ए पैट, ये जो एक्टिविटी है ये पूरे मतलब वर्ल्ड में की जाती है ना, कोई भी मतलब अपने घर में ही रखता है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। यस, ऑब्वियसली ये क्या है, एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। टुडे इट इज़ कैरीड आउट एज अ हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन। यस, ये है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, लेकिन आज ये कैसे किया जा रहा है, हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन के थ्रू किया जाता है। एंड ऑल्सो ऑन अ कमर्शियल बेसिस, मतलब देखो हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन भी है प्लस ये एक मतलब कमर्शियल बेसिस पर भी है। पोल्ट्री। रनिंग अ पोल्ट्री ऑन अ कमर्शियल बेसिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर। ऑब्वियसली अभी अगर किसी ने पोल्ट्री फार्म खोला है तब उसको चलाना है, राइट। तो उसके लिए क्या है, मतलब फर्स्टली उसको क्या रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, देखिए ऑब्वियसली वो जो हैंड्स को रख रहा है उसके अंदर, जो कॉक को रख रहा है, मतलब जो भी, तो उन लोगों की अच्छे से केयर हो सके। ओके, मतलब वो जो पेट्स है उन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा टेक केयर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर दिस साइंटिफिक मेथड आर एम्प्लॉयड। अब इसके लिए क्या हुआ है, साइंटिफिक मेथड जो है वो एम्प्लॉयड हो गया है। इन इंडिया दिस ऑक्यूपेशन इज़ जनरली लोकेटेड इन द एरियाज क्लोज टू बिग सिटीज़। अब ये जो ऑक्यूपेशन है तो जनरली कहाँ पर होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है तो उनके पास में होता है। ओके, एज दे प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर दिस ऑक्यूपेशन। यस, ऑब्वियसली देखो ये मार्केट ये जो होता है पोल्ट्री, तो ये कहाँ पर होती है, जो बिग बिग सिटीज़ होती है उनके क्लोज में होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर सके, रेडी मार्केट प्रोवाइड कर सके ये ऑक्यूपेशन के लिए। नाउ इन सम एरियाज रैबिट, पिग एंड ईमू रेयरिंग इज़ ऑल्सो अंडरटेकन। अब ऐसे भी बहुत सारी एरियाज़ है जहाँ पे रैबिट, पिग और ईमू इन लोगों का वर्क किया जाता है। ओके, इन लोगों के थ्रू वर्क किया जाता है। नाउ बी कीपिंग। दिस ऑक्यूपेशन इज़ अंडरटेकन टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स। अब देखो ये जो ऑक्यूपेशन है बी कीपिंग, तो इससे क्या ऑब्टेन करते हैं, हनी और वैक्स। बीज इज ऑर्डर टू कलेक्ट हनी, hover around the plants and that bear flowers. Yes, अभी ये जो बीज होती है तो वो क्या करती है, फ्लावर से हनी कलेक्ट करके लाती है, राइट। और क्या, होवर अराउंड द प्लांट, मतलब देखो जो होवर्स होता है प्लांट्स के पास वो कलेक्ट करके लाती है। सो दिस प्रमोट्स टू प्रोसेस द
pollination. As a result, the trees bear large number of fruits and the crop yields increase. Beekeeping is an important occupation with respect to agriculture. Yes, obviously अब इस ये चीज़ से मतलब बी कीपिंग ये जो है ऑक्यूपेशन है, तो ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, वो जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट कर रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रीज़ है दैट बियर लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, ऐसे टीयर्स जो बहुत ज़्यादा नंबर पे क्या रखते हैं, फ्रूट्स आते हैं जिनके ऊपर, राइट। और ऐसे क्रॉप दैट यील्ड इंक्रीज, ओके। और प्लस जो बीज कीपिंग है वो क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। नाउ pisciculture means fish farming. Farm ponds are dug out for this purpose. Water is stored in such ponds. Fish seeds are released in the ponds. Yes, अब देखो ये फार्म पॉट्स, अब कैसा होता है फार्म पॉट, जैसे देखो क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग का एग्रीकल्चर के लिए फार्म होता है ना, तो वैसे ही इन लोग फ़िश के लिए फिशिंग फार्मिंग के लिए भी क्या करते हैं, वैसे ही मतलब फ़िश जो पॉन्ड्स होता है वो करते हैं, वो बनाते हैं और फिर उसके अंदर वाटर स्टोर करते हैं। वाटर स्टोर करने के बाद वो फ़िश सीड जो होती है वो उसके अंदर रिलीज़ कर देते हैं वो पॉन्ड्स के अंदर। फिर फॉर दीज सीड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पाइसेस आर यूज इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट ग्रोथ ऑफ फिश। साइंटिफिक मेथड आर एम्प्लॉयड। यस, इसमें भी यहाँ पर भी मतलब ये एग्रीकल्चर में भी हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड जो होता है वो यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से जो फ़िश है उनकी ग्रोथ हो सके। फिशिंग इज़ ओपन सीज हैज़ अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग जो सी ओपन सीज होती है अगर वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ होती है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गेट कैच इन द फिशिंग नेट। यस, और प्लस देखो डिफरेंट टाइप की अगर हम लोग सी साइड फिशिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे फिशिंग करते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप की फ़िश हम लोग हमारे नेट में कैच करते हैं। प्लस उसके साथ जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी कैच हो जाते हैं नेट के अंदर। सेपरेटिंग दैम बिकम्स अ मेजर टास्क। अब वो दोनों को सेपरेट करना, मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं हमारे नेट में फ़िश के साथ, तो वो दोनों को सेपरेट करना ये बहुत ही क्या है, मेजर टास्क है। ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट फेच द सेम प्राइस। अभी देखो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं तो उन लोगों की क्या होती है, सेम प्राइस नहीं होती है। सो ऑल दिस फैक्टर लीड टू, ऑब्वियसली देखो कैसे होते हैं, जैसे ये फ़िश होती है तो फ़िश की अभी ऑब्वियसली फ़िश है सारी, राइट, लेकिन जो फ़िश होती है उनकी सबके प्राइजेस कैसी होती है, डिफरेंट होती है। कुछ ऐसी फ़िश होती है जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है हाई होती है और कुछ ऐसी फ़िश होती है जिसकी प्राइस लो होती है। सो ऑल दिस फैक्टर लीड to the rearing of specific type of fish separately. Pisciculture developed out of this effort. Worm, roha, ravas, Indian salmon, columbi, prawns, etc. are reared in fish farm. अब ये देखो जो fish farm होते हैं तो वहाँ पे कौन सी फिशेज़ ज़्यादा होती है, जैसे मतलब उन लोग ज़्यादा इफ़र्ट कौन सी फ़िश के लिए करते हैं, जो वाम, रोहा, रावस, कोलंबी ये फ़िश के लिए करते हैं, ओके। ऑब्वियसली अब जो फिशिंग होती है ना ये टू टाइप की होती है, एक जो हम लोग सी वाटर में करते हैं एक वो होती है, और एक जो रिवर में करते हैं वो होती है, ओके। नाउ सेरिकल्चर।